Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. As you know, we have been discussing socialism in Europe and the Russian Revolution. In the last lecture, we have discussed about liberals, radicals, and conservatives, their vision of social change, and also we have discussed how socialists emerged in Europe and formed different political parties in Germany, in Britain, and finally how they managed to enter Russia and form a socialist state with the help of, with the support of workers, with the help of workers and other peasants in Russia. Before going to continue on Russian Revolution, before going to discuss Russian Revolution, let us see Russia a few years before the October Revolution of 1917. 1917. Russia, as you know, lies to the eastern side of Europe. In 1914, it was ruled by Tsar Nicholas II. 1914 में रशिया पे जार निकोलस सेकंड रूल करता था. जार निकोलस सेकंड was the autocratic ruler. His empire includes a large, big number of current day states like Finland, Latvia, Estonia, Lithuania, parts of Poland, Ukraine, Belarus, Central Asian states, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, and Azerbaijan. You can see the vastness of Russian Empire. It was in fact a big empire which Tsar Nicholas II ruled, and ruled in an autocratic manner because he was a monarch. Finland is the northern part of Europe. Latvia, Estonia, Lithuania, these are called Baltic states because they lie on the Baltic Sea. Then Central Asian states, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. उसके बाद other Asian states, Georgia, Armenia, and Azerbaijan. This is the extent of Russian Empire. In 1914, the majority population in Russia believed in Orthodox Christianity, about 70%. 70% were Orthodox Christians, though there were Catholics, there were Protestants, Muslims, as well as Buddhists. Catholics, Protestants, these are the variants of Christianity. These variants, because of the interpretation of different Christian scholars, they differ with regard to methods of teaching, with regard to their living lifestyle, etc. It is the general introduction about Russia in 1914. Now, we will look over economy and society in Russia. Actually, we have to see how socialists could manage to form a socialist state in Russia, and how this Russian Empire, Tsar Empire, rule of these Romania dynasty, it ended. In the Russian Revolution, we have some important persons associated with it. Tsar Nicholas II, as you know, the ruler of that time. Karl Marx, this person is very much important when we talk of socialism. Then Vladimir Lenin and Joseph Stalin. These Vladimir Lenin, Joseph Stalin, they are inspired by the ideology of socialism, by the ideas of Karl Marx. कार्ल मार्क्स के क्या आइडियाज थे, ये हम पढ़ेंगे अभी जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे.
यानी इकॉनमी की सूरत हाल रशिया में कैसी थी। एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि रशिया जो है एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन स्टेट्स वाज एन एग्रेरियन स्टेट। What do we mean by agrarian state? Agrarian state means when majority population is dependent on agriculture for their livelihood, the state is called agrarian state. Obviously, this Russia was also dependent on agriculture. Agriculture was about 85%. There were very meager industries. Industries were found in pockets. बहुत कम industries थी रशिया में. And कुदरती बात है कि जब industries नहीं कम थी तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला डिपेंडेंट एग्रीकल्चर, तो वहाँ वर्कर्स ज़्यादा थे। आहिस्ता आहिस्ता दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इट स्टार्ट्स इन रशिया ड्यूरिंग 1980s में क्या हुआ कि मैनी कैपिटलिस्ट्स ब्रिंग इंडस्ट्रीज इन रशिया। Many factories were set up, railway network extended, network जो है ये भी फैला। इससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरियाज, they expanded and it resulted in the expansion of in the increase in coal production, iron and steel production. जब ये चीज हुआ, these industries they were owned by private individuals. They were, the ventures of capitalists. ये capitalists ने ये यहाँ पे, because capitalist is a system against which this person, Karl Marx, he exposed capitalism, capitalist exploitation, how capitalists exploit workers and how the working conditions, how the workers are being reduced to a meager property of the capitalists. So Karl Marx के ideas different है. He was the opponent of this capitalist system. जब इंडस्ट्रीज वहां बढ़ गई, जो लोग हैं workers, they were working in these industries. इन इंडस्ट्रीज में these were not government industries, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं थी, लिहाजा these workers they were exploited by capitalists. How they were exploited? Working hours ज़्यादा थी, working conditions मतलब खराब थे, इसी तरह इनको मिनिमम वेजेस भी कम मिला करते थे। इन वर्कर्स की एक प्रॉब्लम और थी, वो ये कि वर्कर्स वायर डिवाइडेड, बट डिस्पाइट दिस डिवीजन वर्कर्स कुड स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक की। डिवाइडेड या कैसे थे? सम वर्कर्स गांव से आते थे, वो अलग मतलब तरीके से चलते थे। सम केम फ्रॉम सिटीज, उनकी अलग क्रेज थी। और कुछ वर्कर्स मतलब अलग थे बाइसिकल, डिवीजन बाइसिकल, मतलब मेटल वर्कर की बात हम करते हैं। मेटल वर्कर अमंग अदर वर्कर्स कंसिडर हिमसेल्फ सुप्रीम, एरिस्टोक्रेट, मैं ज्यादा मतलब असरदार हूँ, क्योंकि इट रिक्वायर्स मेटल वर्कर, मेटल स्किल जो है इट रिक्वायर्स मोर ट्रेनिंग। लिहाजा these workers were a divided social group, but despite this division workers could strike, उन्होंने स्ट्राइक की। क्यों स्ट्राइक की? because the condition of workers were miserable in industries, इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, इनको मिनिमम वेजेस दिया जाता था, इनको मतलब सोने के लिए जगह, they were not given proper facilities, सोने के लिए उनको जगह भी नहीं मिलती थी। लिहाजा the condition of workers were very miserable. तो सोशलिस्ट्स क्या कहते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स वर्क फॉर कैपिटलिस्ट्स एक्यूमुलेट वेल्थ, वो जो वेल्थ है वो वेल्थ उनसे छीनते हैं। हालांकि ये जो सारा मतलब प्रॉफिट ये असल में हक किन का है? वर्कर्स का है। लेकिन इन वर्कर्स को अपने
मतलब मेहनत के बजाय इनको ये मिनिमम वेज, मिनिमम सब्सटेंस, दीज नीड्स जिससे पूरा हो सके उतना ही दिया जाता है। तो दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम इट वर्क्स फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इस चीज को टोटली चेंज करने के लिए कार्ल मार्क्स एक्सप्लोर हिज आइडियाज, उसने अपने आइडियाज दिए कि ये जो सिस्टम है इट मस्ट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस होना चाहिए, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए कलेक्टिव सिस्टम, बाय ए कॉमन सिस्टम दैट इज सोशलिज्म व्हिच लेटर ऑन became communism. This strand of socialism, the socialism that Karl Marx talks about, because there are different strands of socialism. Karl Marx called his socialism as scientific socialism, that is communism. When there will be communism, there will be no difference. इसका एक मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट है, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये जो हैव्स हैं कैपिटलिस्ट्स, इनके पास सब सारा कुछ है, ये जो हैव नॉट्स है इनके पास कुछ नहीं है। इन हैव्स को ये इतना सारा मतलब दौलत ये नहीं होता, ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किनको, वर्कर्स को। जैसे दीज आइडियाज सेपरेट इन यूरोप, देवर इसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, सोशलिस्ट्स इमर्ज्ड एंड दे वर इन कंटिन्यू effort to form a socialist state, and finally they managed to bring a revolution in Russia and formed a socialist state under Vladimir Lenin. तो वर्कर्स की हम बात कर रहे थे। वर्कर्स ने क्या किया, जब ये कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन उन्होंने देखे कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक की 1896 एंड 97। उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक हुई 1902 में। ये हुआ वर्कर्स का। उसके बाद हम देखेंगे एक और ग्रुप which were exploited in Russia, that is the peasants. Peasants कौन थे? Peasants were the cultivators who cultivated the land of nobles, church officials। यानी ये जो peasants हैं ये लैंड कल्टिवेट कर रहे थे, किन की? नोबल्स की। और जहां वहां से जो प्रोड्यूस निकलता था वो नोबल्स को मिल दिया जाता था। लिहाजा दिस peasants, they were also not satisfied, they were not satisfied with the system of this peasantry। इस चीज को बदलने के लिए वो क्या कर रहे थे, ये भी कभी कभी स्ट्राइक्स करते थे peasants। कभी कभी ये they refused to pay rents, they refused to pay rents, ये रेंट्स भी नहीं देते थे। और sometimes they murder landlords, ये कत्ल कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स को, छुपके से इनको कत्ल भी करते थे, क्योंकि ये भी बहुत परेशान थे इस सिस्टम से। तो बिकॉज दीज नोबल्स, ये दीज वर क्लोज टू जार के ये बहुत करीबी थे, लिहाजा ये जो पीजेंट्स हैं उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। उस चीज को देखते हुए इनमें एक और खासियत थी पीजेंट्स में, रशियन पीजेंट्स में। वो क्या करते थे, वो कलेक्टिवली इस लैंड को कल्टीवेट करते थे, कलेक्टिवली, पीरियडिकली, और फिर मतलब अपने अंदाज से वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो भी प्रोड्यूस वहां से निकलता था। उनका जो एल्डर मीर कम्यून, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता था अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ फैमिलीज, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ फैमिलीज। फिर सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन रशिया, यानी दिस सिस्टम ऑफ दिस पीजेंट्स के कलेक्टिवली लैंड को कल्टीवेट करना, फिर जो प्रोड्यूस निकलता है वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना इंडिविजुअल फैमिलीज में, ये सोशलिस्ट्स का ही कंसेप्ट है असल में। यानी ये कस्टम जो है, इट इज अ कस्टम, दिस कस्टम मेड दिस पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट्स। तो जब 1898 में
एक पार्टी बनाई गई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी इस पार्टी का क्या मकसद है? इस सिस्टम को चेंज करना। दिस पार्टी, दे हैड द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, दे हैड द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। आफ्टर लुकिंग दिस कस्टम, कुछ सोशलिस्ट्स को लगा कि ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कुड नॉट बी द फोर्स ऑफ चेंज, बल्कि पीजेंट्स, वर्कर्स कुड बी द फोर्स ऑफ चेंज। लेकिन जो पीजेंट्स हैं, इनको बात समझ आई है, इनका ये जो कस्टम है, दे मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट्स। तो इससे क्या हुआ कि पीजेंट्स जो कि अपने उस तरीके से काम कर रहे थे, कलेक्टिव, बाय कलेक्टिव मीन्स, फिर कलेक्टिवली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। कुछ सोशलिस्ट्स को लगा कि इनको आसान होगा हमें समझाने में, अगर हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो रेवोल्यूशन जल्दी आएगा। वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने एक सोशलिस्ट, यानी ये जो 1898 की पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, इससे अलग होकर उन्होंने एक अलग सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। कब बनाई? इन 1900। 1900 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, कुछ सोशलिस्ट्स ने। यानी हम क्या देख रहे हैं? सोशलिस्ट्स में डिवीजन। ये जो पहली वाली पार्टी है, इट वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, और इनको बोल्शेविक्स कहते हैं। ये जो दूसरी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, दीज वर मेंशेविक्स। इनमें फिर बहुत सारी ये जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन आखिरकार रशिया में ये जो रेवोल्यूशन आता है, इट कम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस बोल्शेविक्स अंडर व्लादिमीर लेनिन। अब हमने देखना है 1905। 1905 में क्या हुआ कि रशिया में एक पहले एक रेवोल्यूशन आया 1905। उसमें क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं या इस सिस्टम से तंग आके लिबरल्स, सोशलिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, दे वर्क टुगेदर। इन्होंने अब एक साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने वर्कर्स और पीजेंट्स को भी अपने साथ मतलब काम करने के लिए आमादा किया। और इन्होंने जब एक कलेक्टिव नजरिया सामने रखा कि वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन रशिया, बिकॉज they thought that without the support of workers and peasants हम ये चीज कर नहीं सकते हैं। लिहाजा उन्होंने वर्कर्स की बात की कि आपके जो ये जो कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग आवर ज़्यादा है, मिनिमम वेजेस आपको दी जाती है, आपको फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है, इसी की हम बात कर रहे हैं। लिहाजा इनको सपोर्ट किया और दबाव डाला किस पे? जार पे। ये जो मतलब इनकी बातों में आके इन्होंने क्या किया? दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट जार। जार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में फिर इनके कुछ लीडर्स, मेंबरशिप बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद कुछ लीडर्स वर्कर्स के जो है उनको गिराया जाता है, निकाला जाता है, काम से निकाला जाता है। उसके खिलाफ फिर ज्यादा मेंबरशिप बढ़ती है, ज्यादा स्ट्राइक होती है। तो ये जो वर्कर्स एसोसिएशन हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉल दी फॉर एन कलेक्टिव इंडस्ट्रियल एक्शन कि हमारे कुछ लीडर्स जो हैं, वर्कर लीडर्स, इनको निकाला गया है काम से, लिहाजा हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे वर्कर्स जमा हुए, अबाउट 1,10,000 वर्कर्स
स्ट्राइक अगेंस्ट दिस मेजर ऑफ गवर्नमेंट कि इनको डिसमिस किया, इनके लीडर्स को डिसमिस किया। इसके खिलाफ जब इन्होंने स्ट्राइक की, ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो कंडीशन है इसको इम्प्रूव किया जाए, हमें जो वेजेस है इसको भी इंक्रीज की जाए। और एक बात जो मैं भूल गया वो ये कि 1904 में, in 1904, दिस रशियन वर्कर्स, इनको एक और मुसीबत आई। ये जो प्राइस है, प्राइस बहुत ऊपर चला गया। एसेंशियल कमोडिटीज, प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो शाही खुर्दनी होते हैं, उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि रियल वेजेस, और ये रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। रियल वेजेस क्या होते हैं? रियल वेजेस मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। The purchasing real wages reflect the quantities of goods that wages can actually buy. wages कम नहीं हुए, जो wages थे वो वैसे ही थे, ऑलरेडी कम ही थे, मतलब जितने भी थे कम ही थे। 1904 में रियल वेजेस डिक्लाइन। रियल वेजेस से क्या मतलब है? बाय रियल वेजेस वी मीन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जब प्राइस बढ़ गया, जो पहले इन्हीं वेजेस से 10-20 मतलब बहुत सारी चीजें खरीद सकता था, अब वो कुछ चीजें खरीद सकता है। दैट मीन्स द डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इट्स कॉल्ड रियल वेज। रियल वेजेस जब डिक्लाइन हो गए बाय 20%, वर्कर्स फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। जब इनको मुश्किलात आई तो इन्होंने ये मद्देनजर रखते हुए और अपने उन लीडर्स को जो डिसमिस किए गए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्ट्राइक की गवर्नमेंट के खिलाफ। उनका एक प्रोसेशन निकलता है वर्कर्स का, 110,000 वर्कर्स, दे प्रोसीड टुवर्ड्स विंटर पैलेस अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन। तो जब वहां पहुंचते हैं ये, वहां मौजूद पुलिस और आर्मी फोर्स उनको तितर बितर करने के लिए, उनको भगाने के लिए वहां पे उन पे फायर की जाती है, उनको मारा जाता है। उस इंसिडेंट में 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 जख्मी होते हैं। दिस इवेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। दिस इवेंट इज नोन एज ब्लडी संडे इन रशियन हिस्ट्री। ब्लडी संडे। उससे आगे क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।